ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ +1 ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਟਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਮਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਡ ਚਾਰਜ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੇਮ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ +1 ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਲੱਸ CBSE ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 1836 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲਡਸਟੀਨ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1836। MCQ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡਸਟੀਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ, ਦੈਨ 1836। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵਾਸ ਡਿਸਕਵਰਡ ਬਾय ਦਾ ਗੋਲਡਸਟੀਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਨਾਲ ਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਐਨੋਡ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਡ ਮੀਨਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਫ ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ। ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਟਰੈਵਲਸ ਇਨ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, the anode rays deflected by the magnetic and electric field। ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਿਫਲੈਕਟ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, like cathode rays, these are also rotate the wheel placed in their path। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਲ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਰੇਜ਼ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਲ ਹੋਏਗਾ ਮਕੈਨੀਕਲ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਫੀਲਡ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰੇਜ਼ ਐਨੋਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਪਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਅ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ। ਇਹ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ ਵੀ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਡਿਸਚਾਰਜ ਟਿਊਬ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲੋ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਫਥ ਹੈ ਜੀ, ਅਨਲਾਈਕ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਦਾ E/M ਰੇਸ਼ੋ। E/M ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ। of the positive depend upon the nature of the gas taken in tube। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਗੈਸ ਇਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਡਿਪੈਂਡ। ਬਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨਲਾਈਕ ਦਾ ਕੈਥੋਡ ਰੇਜ਼, ਉਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
कितना होएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है जी। ये अपने को प्रोटोन का पॉजिटिव चार्ज है, मास अपने को 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होएगा। हाँ जी, इस विच एक डेफिनेशन आप करते हैं प्रोटोन दी। हाँ जी, डेफिनेशन है अ सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो जी, जो पॉजिटिव चार्ज है इस विच चार्ज कितना होएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है जी। कहता जो भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है उस विच यूनिट चार्ज होना चाहिए 1 यूनिट चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो उसका मास है, मास तो मैं दस ही दिता 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम इक्वल टू डेट ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। जो इसका सब एटॉमिक पार्ट दे विच 1.6 जो अपने कोल चार्ज होएगा, जो अपने कोल मास होएगा वो किस दे इक्वल होएगा, जो एक 1 एटम ऑफ द हाइड्रोजन दे इक्वल होएगा। उसनों आपां प्रोटोन दी डेफिनेशन कह सकते हैं। जस्ट तुसीं प्रोटोन दी डेफिनेशन की दे सकते हो, प्रोटोन इज द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम विच कैरीज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तुसीं दस सकते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड हैज अ मास 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है अपने को टॉपिक, अपने को है डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। देखो जी, रेडियो एक्टिविटी दी जो डिस्कवरी है वो अपने को साइंटिस्ट हैनरी बैक्यूरेल ने की सी इन 1896 दे विच। जो अपने को हैनरी सी ये अपने को फ्रेंच कंट्री का रहने वाला सी, फ्रेंच साइंटिस्ट सी। ठीक है जी। MCQ बन सकता है भी जो रेडियो एक्टिविटी दी जो खोज सी, डिस्कवरी सी किसने की थी, तो तुसी हैनरी बैक्यूरेल कह दोगे। ईयर अपने को 1896 एंड कित्थों दा रहने वाला सी, फ्रेंच। ठीक है जी। नेक्स्ट है इसकी अपने को रेडियो एक्टिविटी दी डेफिनेशन है द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस emission of active radiation by certain elements is called radioactivity। की कहता जो अपने को एक्टिव रेडिएशंस है, जो अपने को सर्टन एलिमेंट कुछ एलिमेंट लगातार emission करते हैं, रेडियो एक्टिविटी नू ट्रांसफर करते हैं, emission अपने विचों बाहर कढ़ते हैं, उस फिनोमिना नू आपां रेडियो एक्टिविटी कहांगे। देखो जो अपने को स्पॉन्टेनियस वर्ड है, स्पॉन्टेनियस दा वर्ड दा मतलब की हुंदा जी कंटिन्यूस, लगातार। इहनू आपां लगातार कह सकते हैं, कंटिन्यूस कह सकते हैं। ठीक है जी। उसनू आपां रेडियो एक्टिविटी कहांगे, उस प्रक्रिया नू, उस फिनोमिना नू। ठीक है जी। नेक्स्ट अपने नाल इहदे नाल ही एक रिलेटेड डेफिनेशन है। हाँ जी, कह रहे हैं जी द सबस्टेंस विच emits such radiations are called radioactive substance। कहता जो एलिमेंट्स लगातार स्पॉन्टेनियस करते हैं रेडियो एक्टिव, जेड़े एलिमेंट्स चों बाहर आउंदा निकलदा है उसनूं आपां रेडियो एक्टिव सबसटेंस कहांगे। इहदे विच आपां यूरेनियम दी एग्जांपल ले सकते हैं। यूरेनियम हो गया, बेरियम हो गया, क्रिप्टॉन हो गया। ठीक है जी। ये अपने को रेडियो एक्टिव सबसटेंस दियां एग्जांपल्स हैं। क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आपां। जदों इन्हां रेडिएशंस नू मेजर किया गया तां ये 3 टाइप्स दियां सी। 3 टाइप्स किहड़ियां सी अपने कोल? अल्फा रेज सी, सेकंड है अपने कोल बीटा रेस, जो अपने को थर्ड सी गामा रेस। ठीक है जी। जो अपने को अल्फा रेस सी ये अपने को पॉजिटिव चार्ज सी, जड़ियां रेस कोल पॉजिटिव चार्ज सी उसनों आपां अल्फा रेस का नाम दिता।
जो अपने कोल बीटा रेज सी वो नैगेटिव चार्ज सी, जो अपने कोल गामा सी जिन्हां उत्ते कोई चार्ज नहीं सी, न्यूट्रल सी, स्टेट लाइन दे विच पास कर गईयां, उसनूं आपां नो चार्ज। ठीक है जी। उन्होंने एक एक्सपैरीमेंट किया, रेज नूं एक डायरैक्शन विच मूव करवाया, ਜਿਹੜੀਆਂ रेज पॉजिटिव वाले पासे डिफलैक्ट हो गई, पॉजिटिव रेज हो गई, जिसनों आपां अल्फा का नाम दिता। जो नैगेटिव वाल टर्मिनल वाल डिफलैक्ट हो गई बीटा रेज, ਜਿਹੜੀਆਂ स्टेट लाइनस ਦੇ ਵਿੱਚ ही चलिया गई, ना ही नैगेटिव ते ना ही पॉजिटिव टर्मिनल्स वाल डिफलैक्ट हुई, मीनस it moves in a straight line. These rays are called gamma rays, means it has no charge, neutral rays. Clear है जी? हाँ जी। इस तो नेक्स्ट है टॉपिक अपना। हाँ जी, तुसी ये डायग्राम देख रहे हो स्क्रीन के उत्ते। हाँ जी, अपने कोल एक लेड ब्लॉक है। लेड ब्लॉक का की काम हुंदा है, जो आपां रेडियो एक्टिव सबस्टेंस पाया उसकी की हुंदी है, जो एमिशन हुंदी है सारे पासे हुंदी है इन 3 डायमेंशनल। तां करके आप एक लेड ब्लॉक ले लिया, जिहदे विच की है एक होल है वन साइड दे उत्ते, जिहड़ियां रेज निकलणगियां आसे पासे नहीं जाणगियां, सिर्फ वन डायरैक्शन दे विच मूव करनगियां। जो इहदे विच पाया आपां रेडियो एक्टिव सबस्टेंस है, कोई भी हो सकता है रेडियो एक्टिव सबस्टेंस। जो अपने कोल ये स्क्रीन है लेड शीट विद होल, इस विच एक फाइन होल है, बहुत ही छोटा जिहा एक होल है, जिहदे विचों ਜਿਹੜੀ रेज पास होएगी सिर्फ वही रेज पास होएगी, बाकी उत्ते ही रह जाणगियां। नैक्सट अपने को इलैक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स लगियां हुई हैं, पॉजिटिव है ते नैगेटिव है, रेज जा रही हैं स्ट्रेट लाइन दे विच। मैं दस्सिया सी जो नैगेटिव दे वल डिफलैक्ट होगी, मीनस ओपोजिट चार्ज एक दूजे नूं अट्रैक्ट करदे आ। नैगेटिव प्लेट वल पॉजिटिव रेज जाणगियां, उसनूं आपां अल्फा दा नाम दिता। जो पॉजिटिव वाले पासे नैगेटिव रेज आणगियां, उसनूं आपां गामा, सॉरी इत्थे अपने कोल बीटा आएगा, ये अपने कोल बीटा रेज है, ये अपने कोल गामा रेज है। अपने कोल बीटा रेज कह देंगे। जो अपने कोल स्टेट चला जाएगा, ना ही यह पॉजिटिव प्लेट वाल ना ही नैगेटिव प्लेट वाल मूव करेगा, उसनूं आपां गामा रेज कह देंगे। ठीक है जी। जो अपने कोल अल्फा है वो अपने कोल पॉजिटिव होएगा, जो बीटा रेज है अपने को नेगेटिव होएगा, जो गामा रेज है नो चार्ज, उस उत्ते कोई चार्ज नहीं होएगा। इस चीज नूं तुसी ध्यान नाल देखना है। हाँ जी, नैक्सट है अपने कोल, इस तो बाद एक अपने कोल थॉमसन आया सी, जे थॉमसन, जिसने आपां नूं फर्दर इसदी आपां नूं नॉलेज दित्ती सी, एक्सपैरीमेंट प्रोवाइड कीता सी। हाँ जी, आपां जे थॉमसन बारे कुछ जानकारी ले लैंदे आ। हाँ जी, आपां हुण इलैक्ट्रॉन ते प्रोटॉन नूं अरेंज करना है। एक अपने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है, जो अपने कोल इसकी जो डिस्कवरी है जे थॉमसन ने की। उसने की किया एटम बारे, कहता जो अपने कोल एटम है एक स्फेरिकल है, एक गोले दे आकार दा है, जिस विच नेगेटिव चार्ज भी है पॉजिटिव चार्ज भी है। ठीक है जी। अपने कोल जो उस तो बाद इसने की किया, जो ये मॉडल है आपां नूं एक पडिंग केक की तरह है, लाइक पडिंग केक, और वाटरमेलन। इसका की मतलब सी, जो अपने कोल वाटरमेलन है, जो इस विच जो सीड्स है, मैं बीज की गल कर रहा हाँ, जो ब्लैक ब्लैक सीड्स है वो इलैक्ट्रॉन की तरह है। ये अपने कोल इलैक्ट्रॉन है। जो अपने कोल रेडिश पार्ट रह गया, ये रेडिश पार्ट है अपने कोल, वो अपने कोल प्रोटॉन है। ठीक है जी। जहां आप लाइक पुडिंग केक की गल करिए, स्वीट केक की गल करिए,
जो उस विच चैरिस वगैरह होणगियां, चैरी वो की होणगे इलैक्ट्रॉन की तरह होणगे जो थां थां दे उत्ते है। ठीक है जी। तो जो अपने कोल पूरा एक केक होएगा वो अपने कोल की होएगा, प्रोटॉन होएगा। जो चैरीज होणगियां वो अपने कोल इलैक्ट्रॉन की तरह वर्क करेगा। आपां नूं जे थॉमसन ने एक्सपैरीमेंट दिता सी। हाँ जी, इस तो बाद है अपने कोल, हाँ जी, उस तो बाद अपने कोल रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपैरीमेंट है। देखो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपैरीमेंट की कहता है, एक रदरफोर्ड सी ते एक उसदा स्टूडेंट सी, हिज स्टूडेंट। उन्होंने एक एटम्स दे उत्ते एक डिस्कवरी की, एक उन्होंने एक्सपैरीमेंट किया। उन्होंने की कहा, मान लो जो अल्फा पार्टिकल्स है वो की करनगे जी, उन्होंने कोल पॉजिटिव चार्ज होएगा, वो अस्केप बचन की कोशिश करनगे। देखो जी, एक आपां लैड शील्ड लई है, लैड शील्ड है, ये एक बहुत ही फाइन होल है। फाइन होल मीनस बहुत ही बरीक होल है जिस विचों रेज जा रही हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स है, सॉरी ये अपने को रेडियो एक्टिव कोई भी पार्टिकल्स है। इत्थे आपां गोल्ड फॉइल लिख सकते हैं, ये अपने कोल गोल्ड फॉइल है। सोने की कोई पत्तरी है, उसनों थोड़ा जा टिल्ट करके उसनों आपां सेंटर विच रख दिता है। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਿਸੇ ਵੀ 골ਡ ਫੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਲੇਟ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਲੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਥਰੂ ਦਾ 골ਡ ਫੋਇਲ। उसने फोटो इलैक्ट्रिक प्लेट नूं की कीता जी, डिफलैक्ट किया। जिथे जिथे ये अपने कोल जो रेज फॉल होईयां उत्थे की है जी, वो वाली जो शीट है ब्लैक होनी शुरू हो गई, डॉट्स लगनी शुरू हो गई। ठीक है जी। आपां माइक्रोस्कोप की मदद नाल इस नूं बहुत ऑब्जर्व किया रदरफोर्ड अते उसके स्टूडेंट्स ने। हाँ जी, जो अपने कोल इहदे उत्ते किहड़ी लेयर लगी है, एक जिंक सल्फाइड की लेयर लगी है जो अपने कोल अल्फा पार्टिकल नूं डिटेक्ट करती है। हाँ जी, ये अपने कोल रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपैरीमेंट सी। इहदा एक एक्सपैरीमेंट होर है, मैं तुहानूं दस्सण जा रहा इलैक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बारे। हाँ जी, जो अपने कोल रदरफोर्ड ने एक्सपैरीमेंट किया, एक गोल्ड फॉइल, ये अपने कोल एक गोल्ड फॉइल है, उस विच उसने इलैक्ट्रॉन्स बारे आपां नूं दस्सिया। उसने की ऑब्जर्व किया, फर्स्ट है अपने कोल मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। देखो जी, जो अपने को अल्फा पार्टिकल्स है, ये सारे अपने को अल्फा पार्टिकल्स है जो अपने को मोस्ट ऑफ 99% अपने को जो अल्फा पार्टिकल सी गोल्ड फॉइल दे विचों पास कर गए टू द अदर साइड। अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू अ स्मॉल एंगल्स। जो कुछ अल्फा पार्टिकल सी वो डिफ्लैक्ट हो गए, उन्होंने कुछ एंगल बना के आ डिफ्लैक्ट हो गए, आ डिफ्लैक्ट हो गए, कुछ एंगल बना के डिफ्लैक्ट हो गए, बट वो पास तो हो गए पर कुछ एंगल बना के डिफ्लैक्ट भी हुए। थर्ड है अ वेरी फ्यू डिड नॉट पास एंड डिफ्लैक्टेड बैक इन सम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। कहता जो कुछ पार्टिकल सी बहुत ही घट जो कि है किसी भी इलैक्ट्रॉन नाल टकराए तो पास नहीं होए, वो सिर्फ अपने उस डायरेक्शन विच वापस आ गए। ठीक है जी। एंड अल्फा पार्टिकल्स कम बैक इन द सेम डायरेक्शन इन विच दे इंसीडेंट। ठीक है जी। इस तो की उन्हें ऑब्जर्व किया, हुण आपां ऑब्जर्वेशन करते हैं इस एक्सपैरीमेंट दियां। रदरफोर्ड ने की ऑब्जर्व किया, जो पार्टिकल्स पास हो गए, जो पार्टिकल्स एक गोल्ड फॉइल दे विचों अदर साइड दे उत्ते चले गए, उसका की मतलब है उत्थे इलैक्ट्रॉन की डेंसिटी घट है। देखो इस रीजन दे विच इलैक्ट्रॉन की डेंसिटी घट है तो वह पास हो गए। जिथे एंगल बनाता उत्थे थोड़ी जी डेंसिटी हैगी है तो जो उस नाल स्ट्राइक होके कुछ एंगल बना के चले गए, उत्थे इलैक्ट्रॉन की डेंसिटी घट सी। ठीक है।
ਜੋ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸ ਹੈ, ਡੈਂਸ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਵਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੇ CBSE ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਟਮ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ in an atom the entire mass and the positive charge is concentrated in very small region at the center is called nucleus। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਸ ਹੈ ਐਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਟਾਇਰ ਮਾਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ। ਜੋ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਹੈ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਜ਼ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ। ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਐਂਡ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆਰ ਹੈਲਡ ਟੁਗੇਦਰ ਬਾਈ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਹੈ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ most of the space in the atom between the nucleus and revolving electron is empty। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਕੁਝ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਮਪਟੀ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਦਰਫੋਰਡ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੇ ਥੌਮਸਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਬਾਰੇ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਯੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਗੁਪਤਾ ਅਕੈਡਮੀ ਮਲੋਟ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।